السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، یہ سارا مہینہ جو رمضان المبارک کا گزرا ہے، ہم نے یہی سوچ سوچ کے گزارا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب اکٹھا کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہ بخشوا لیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سرخ رو ہو جائیں، کیونکہ یہ سال بعد دوبارہ یہ مہینہ آنا ہے. مگر میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت ساروں نے یہ مہینہ گزارتے ہوئے یہ ان میں نہیں رکھا کہ یہ اگلے سال جب مہینہ آنا ہے تو ہم نے یہاں ہونا ہے یا نہیں ہونا. صحیح. کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا اور میڈیا کے اوپر بھی یہی دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ اس مہینے میں جس طرح ہم عوام کی اور غریب لوگوں کی کھال اتارتے ہیں، میرا خیال ہے پورا اس سال نہیں کہیں ایسا ہوتا. بڑا ہی شرم کا مقام ہوتا ہے. اور یہ تو اب پوری دنیا میں بات پھیلتی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستانی مسلمان، یہ اپنے رمضان المبارک میں حد کر دیتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کیا، زیادہ سے زیادہ پرافٹ لوگوں کا بالکل ستیہ ناس کر دینا اور کوشش کرنا کہ غریب آدمی روٹی نہ کھا سکے اس پورے مہینے میں، جو کہ سب سے اہم ہوتی ہے چونکہ پھر سارا دن روزہ رکھنا ہوتا ہے. بہرحال اگلی دفعہ یہ سوچ کے ہمیں یہ مہینہ گزارنا چاہیے کہ ہم نے گناہ تو بخشوانے ہیں اور پھر اس طرح بخشوانے ہیں کہ ساتھ دوسرے گناہ چھوڑ دینے ہیں. جو بخشوا لیے ہیں وہ تو بخشوا لیے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بخشوا لیے تو آگے سے کرتے ہی جاؤ، خیر ہے. نہ 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 نہ، توبہ کی امید پر گناہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. اس دعا کے ساتھ میں یہ والی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک دکھائے اور ہم پچھلے اپنے گناہ جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور یہ جو لوٹ مار ہے یہ نہ کریں اس مہینے میں. آمین. ناظرین، اس سے پہلے کہ میرا اینکر میری ٹکر پہ دانشوری شروع کر دے، اب عیی کا خبروں پر تبصرہ پیش خدمت. یار میں نے محسوس کیا ہے کہ تم میرا اینکر ایسے نہیں کہتے جیسے کہتے میرا بلا. لو حد ہو گئی ہے یار میرے لیے دو چیزیں ہی تو اہم ہے، میرا سکوٹر اور میرا اینکر. حد کر رہے ہو تم. اینکر کو معمولی چیز ہوتی ہے. دونوں کے ساتھ تم بہت برا سلوک کرتے ایسے نہ کرو یار، خدا کے لیے یار. اور دونوں کے اوپر سوار ہوئے ہوتے ہو تم یار. اللہ معاف کرے. اچھا جی، خبروں پہ تبصرہ شروع کریں جی. تبصرہ شروع، پھر اور نہ کچھ کہنا شروع کر دیا. اب تو مجھے پبلک کہنا شروع ہو گئی ہے. جی تمہیں بہت جگتیں پڑتی ہیں پاجنا. اچھا جی، خبر ہے کہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ ساری جماعتوں کا صدر بنوں گا صدر پاکستان ممنون حسین. بہت اچھے. ساری جماعتوں کا صدر بنوں گا کیا مطلب؟ اب یعنی پیپلز پارٹی کے صدر بھی یہ ہوں گے؟ اور نہیں یار، مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتوں کو لے کے چلوں گا. سب کا صدر ممنون صاحب. ہیورے والا یہ ایک دفعہ صرف بات یہ والی کہتے ہوتے ہیں. بنایا تو آپ کو نون لیگ نے ہے. جب آپ نے حلف اٹھانا ہے نا، اس وقت جو تقریر کرنی ہے اس میں صرف ایک دفعہ یہ بات کر دیں. اب روئی نہ بار بار یہ کہیں کہیں نواز شریف صاحب کو غصہ چڑھ جائے اور وہ آپ کو واپس ریورٹ کر کے تو ASI کر دے. اتنا برا لگے گا کہ سول لائن تھانے میں سابق صدر روئی نام چکول کے بیٹھا ہو اور SHO کو چیک کرا رہا ہو کہ یوراج یہ درخواست آئی ہے اور اس پہ عمل ہونا ہے اور اس پہ نہیں ہونا. حد ہو گئی ہے. ویسے یہ تو حیور سب کو ہی پتا ہے کہ آپ نون لیگ کے ہیں، بلکہ باقی لوگ نون لیگ کے ہیں، آپ تو ممنون ہیں. ڈبل نون آپ کے نام میں آتی ہے. آپ ڈبل نون لیگ ہی ہیں حیور. اس صدر نے آج تک یہ بیان نہیں دیا کہ جناب میں پوری قوم کا صدر ہوں، کسی ایک سیاسی جماعت کا صدر نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے کہ کون کس سیاسی جماعت کا صدر ہے. آپ پاکستان کے صدر ہیں. I know very well. بس اب be quiet, don't worry, don't tell this because it is not like to Mr. Nawaz Sharif صاحب. ایک چینی کمپنی کے نائب صدر نے کہا ہے کہ چائنا میں شہباز شریف کا بہت نام ہے. ہائے 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 ہائے. مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ چین میں یا چکن شیشلک مشہور ہے یا شہباز شریف مشہور ہے. بلکہ وہ بتا رہا تھا کہ چائنیز میں شہباز شریف کو شیشلک شریف کہتے ہیں اور کہہ رہا تھا کہ یار نام ان کا شیشلک شریف ہے
हर तबीयत इनकी चिकन मंचूरियन वाली है, वो जो शू करके नहीं होती। इनकी तबीयत भी मशहूर है और इनका नाम भी उधर बड़ा मशहूर है। मैं तो सुना है कि इतना मशहूर है वहां पे चाइना में शहबाज शरीफ साहब कि उधर इस दफा बीजिंग में हल्का 96 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 96 से? यार बीजिंग में भी तो हल्का 96 होगा, डेफिनेटली होगा। बल्कि जितनी उधर आबादी है उधर तो 96,000 हल्का भी होगा। अच्छा, तो ये चीनी जो है ये शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से मुतासिर हुए हैं। चीनी खुद तो मेहनत नहीं ना करते इतनी। यार करते हैं वो भी मेहनत, इसीलिए तो उनको ये पसंद आए हैं कि यार ये बंदा हमारी तरह मेहनत करता है। चीनी तो इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह माफी दे, कई दफा सोए हुए साइकिल चला रहे होते हैं। देर हो जाए ना और नींद भी ना पूरी हो तो बच्चों को उठा देती हैं माएं, पुत्र जा बाकी साइकिल ते सौं लवी, चल जा चौपो पहुंचो। आगे बच्चे बेचारे सुते पे उठे हुए रोना शुरू कर दे, पी 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 पी। तो ये शुक्र है कि इसने चीनी जुबान में 2-3 नए लफ्ज तो डाले ना, वरना इसकी पूरी चाइनीज जो थी 3 लफ्जों पर थी, चौ पाँव चौ। नहीं यार रोना मैंने दिखाया ही पहली दफा, तो यार नवा ही होना था। पहुंचो का पी पी पी। बच्चे ऐसे रोते हैं यार लंबा करके, शोहर नहीं ऐसे रोते, शोहर और तरीके से रोते, वो सिर्फ इतने रोते हैं पका जबा। इसके ज़हन में या दुनिया में बच्चे रोते हैं या शौहर रोते हैं, बस। बांग्लादेश का अदाकारा मीरा को वीजा देने से इनकार, पासपोर्ट भी वापस नहीं किया। हेलो, इस औरत का भी कोई ना कोई स्यापा पड़ा ही रहता है। कभी किसी के साथ पलाये का झगड़ा चल रहा होता है, कभी किसी के साथ निकाह का झगड़ा चल रहा होता है, कभी किसी की कोठी के अजाब में फंसी होती है, कभी कहीं तलाक की वजह से बेचारी परेशान होती है। स्यापा कोई नहीं पड़ा रहता, खबरों में रहने का फन है उसका यार। यार बांग्लादेश वालों ने देखो यार पासपोर्ट भी रख लिया और वीजा भी नहीं दिया। वहां को मेरा ख्याल है गलत अंग्रेजी बोल बैठी है। उन्होंने कहा होगा कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, उनका कह दिया आई एम एक्टर। उन्होंने कहा इधर फीमेल लिखा हुआ है, कह रही है एक्टर, एक्ट्रेस नहीं कहा बेचारी ने। उधर उस वक्त पासपोर्ट क्यों नहीं वापस कर रहे? यार पासपोर्ट वो इसलिए नहीं वापस कर रहे, वो कह रहे हैं कि शक्ल से ये बंगाली लगती है, पासपोर्ट इसके पास पाकिस्तानी है। या मेरा ख्याल है पाट पोस्ट की वापसी पे भी अंग्रेजी आड़े आ रही है। बार बार उनको यही कहती जा रही है, प्लीज टेक माई पासपोर्ट, प्लीज टेक माई पासपोर्ट, टेक। टेक टेक ना क्यों नहीं होने? हो सकता है ना इस तरह का बुराटा पड़ा हो, और क्या उसका बेचारी का। अजीज साहब आपको नहीं पता, एक पब्लिसिटी स्टंट होता है इनका। हाय हाय, पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता, इस तरह की अल्लाह लोकड़ी को होती है बेचारी। अच्छा। हमारे पिंड में भी थी एक साई लोकड़ी, उसकी भी रोज हर दूजे तीजे घंटे के बाद कोई नवी खबर पिंड में मशहूर हुई होती थी। वो पता लगा जी क्या वो साई लोकड़ी नहीं आहो जी, वो मेन सड़क पे बस रोक के खड़ी है। पता लगा जी क्या साई लोकड़ी नहीं, हाँ जी वो गूंच डिग पई। पता लगा जी क्या साई लोकड़ी नहीं, हाँ वो इंट चौक के चौधरी के पीछे दौड़न नहीं। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपके लिए होंगी चंद दिलचस्प तस्वीरें और वीडियोस। जी साहब वीडियो दिखाओ आपको। व्हाई नॉट इज व्हाई नॉट इज बड़ी क्यूट सी वीडियो है ये, देखें देखें बच्चा सो रहा है। ओ नन्ना मुन्ना काका, और उसके नीचे कर लो। हाँ वो एक तरफ से हाथ नीचे करते हैं, दूसरी तरफ से उठा लेता है। बहुत अच्छे। लो जी ये बच्चा लाजमन बड़ा होके लीडर बनेगा। ओहो। हाँ जी कैसे? देखो ना यार वो ख्वाब में ही तकरीर कर रहा है। ये तकरीर करने वाले भाई का एक हाथ जरूर ऊपर होता है। अच्छा। भावे से जाओ भावे खबाओ। या फिर मेरा ख्याल है ख्वाब में इसको कोई पूछ रहा है कि इस मुल्क का अगला सदर कौन होगा। उसने हाथ उठा दिया, अब उसका हाथ नीचे कर रहे हैं, वो कहता है नहीं मैं ही हूँगा, मैनू नहीं पता, मैं ही बनना है, मैनू नहीं पता, मैं बन के रहूंगा, जो मर्जी कर लो। ये ले अगली वीडियो देखें। बहुत अच्छा।
अच्छा 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 अच्छा, वो गाड़ी के वाइपर को देख के पुड़क रही है। हाँ जी, वो अंदर बैठी हुई है ना। अच्छा, ओहो, शाबाश। वैसे ईमान से लोग भी बहुत शरारती होते हैं। देखो ना उसको क्या सियापा डाल दिया। वो बेचारी हर बार ही डर रही है कि शायद मुझे कोई शय मार रहे हैं। ओहो, आज टीना कर देना आप बिल्कुल ही बिल्ली के सेल खत्म हो जाए। नहीं नहीं, बहुत अच्छे। इस तरह की क्यूट शरारतें जो होती है ना, वो ये को उसका बचपन याद करा देती। आपने की नहीं ऐसी शरारतें? मुझे तो कहते ही बिल्ली थे छोटे होते। वाह 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 वाह। वैसे इस बिल्ली का फजलुर रहमान साहब वाला साहब है। कैसे? हाँ, अगर ये तुम सोचो कि वाइपर हुकूमत है और ये हुकूमत से बाहर है, मगर फिर भी छलांगे मार मार के उसे जफा डालने की कोशिश कर रहे हर बार। चलें एक वीडियो देखें, ये लें। को मजदूर रेत बजरी सीमेंट ढो रहा है ट्राली पे, और किस तरह? हाय 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 हाय। बहुत अच्छे। किधर को निकल गया सीमेंट रेत बजरी लेने। अच्छा, मैं भी दादे देते रहते हैं बाहर के लोगों को, बंदा पूछे जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है तू वहीं पे लग जा जाके। इतनी दूर से जरूर तुमने रेत सीमेंट बजरी लानी। इतना पेट्रोल साड़ के या बैटरी साल के उधर से बजरी लेने गया। अब आ गया नाम मुराद वापस। ओ काका, अगली दफा वो बजरी वाला आवे तो उसको कहो कि इतनी बजरी फेंको, इतनी दूर से लानी पड़ती है। उसकी अच्छी भली इजाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया। यार इजाद कौन सी है यार, मुझे नजर नहीं आ रही वो रेत बजरी ढोने वाली, वो क्या उसको कहते हैं, ट्राली है कमील वाली। उसकी इनोवेशन तो है ना। दिखाओ ये रहा फिर से। ये लें, देख लें। ओहो, मेरा ख्याल है कि इस अंग्रेज के अब्बे ने कहा कि मैंने नहीं तुम्हें मोटरसाइकिल लेके देना। उसने बेचारे ने फिर इस हाथ रेडी को बैटरी लगवा ली है। अब अपनी गर्लफ्रेंड को इसी रेडी पे लाद के बेचारा सैर करने जाता है। रास्ते में किसी वक्त इसकी गर्लफ्रेंड गलत फ्रेंड भी हो जाती है, अन्नी बन के मांगना भी शुरू कर देती है। रेडी पे जो पड़ी होती है बेचारी, ए रिच मैन, hey, please give me $1. My boyfriend is bekar. He have no work. And I have hepatitis C. A hole in my heart. Hey, give me $1. हाँ, अंग्रेजी में ही मानते हैं। मुझे तो दोस्त बता रहा था कि फकीरों ने उधर गिटार पकड़े होते हैं। आप अगली तस्वीर देखें, ये ले। ये मेरा ख्याल है जब वेस्ट इंडीज को फेंटी पड़ी है ना पाकिस्तान से क्रिकेट में, ये उस वक्त की तस्वीर है। ये क्रिस गेल और उसका अब्बा है। उसने उसको फेंटी लगाई है पुत्र अपने को, उसकी वर्दी वर्दी उतार दिया और उसको कहा चल मेरे साथ काम पे। बदतमीज। अच्छा भला दिहाड़ी लगाता था $500 की रोज, मैंने क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है। नीचे से इटें फेंकते थे ना तो इट बड़ी अच्छी कैच करता था। उधर से इसने इनोवेशन ली है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। जुतियों वाली दुकान में बड़ी अच्छी से जॉब मिल गई थी। अच्छा। हाँ जी, बगैर सीढ़ी लगाए सबसे ऊपर वाले खाने से भी जूती उतार लेता था। जाते जाते एक और वीडियो थी साहब। सीढ़ियाँ नीचे आ रही हैं और वो खातून जो है वो बेचारी ऊपर को जा रही है, मुसलसल कोशिश कर रही है ऊपर जाने की। होए होए होए। ये तो जितने इत्मीनान से लगी है, मुझे लगता है छोटी सी यहाँ आई थी इधर ही बड़ी हो गई है। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि अगर डायरेक्शन गलत हो जितनी मर्जी मेहनत करते चले जाओ रिजल्ट 0 होता है। यानी तुम कहना चाहते हो कि ये पाकिस्तानी कौम है? उफ। ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हजूर वाला लम्हा फिक्रिया ये है, आपने कल खबरों में सुना होगा कि गुजरांवाला में छोटी बहन ने अपनी सगी बड़ी बहन को मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है वो ना देने पर कत्ल कर दिया। बिल्कुल जनाब, अब जाहिर है कि उसने शायद उसका इरादा ना हो कि कत्ल करे, लेकिन बहरहाल इसकी जो वजह बनी वो मोबाइल का मेमोरी कार्ड था।
लम्हा फिक्रिया ये है कि कभी इस बात पर हमने गौर किया है कि जूं मोबाइल हमारे कल्चर में बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि मोबाइल कल्चर ही बन गया हमारा, तू इससे रिलेटेड जो लड़ाइयाँ हैं उनमें भी इजाफा नहीं होता चला जा रहा? ला हौल वला कुव्वत, मैं तो ये सुन के हैरान हो गया हूं कि बहन ने बहन को कत्ल ही कर दिया है। जनाब हाय 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 हाय। अब इसके बाद भी अगर हम ना समझे, ये इशारे ही होते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से, अब इसके बाद भी अगर ना समझें और बच्चों को कंट्रोल ना करें तो फिर अल्लाह ही वारिस है हमारा। बिल्कुल। अब मसला ये है कि मोबाइल की ये जो बीमारी है, मतलब एक तरफ बहुत बड़ी नेमत है, दूसरी तरफ बारहा हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कितना बड़ा अजाब बन के नाजल हुआ है ये मोबाइल हमारे माशरे पे। यानी हमारे माशरे के जो तारपो है, पूरा फैब्रिक है, उधेड़ के रख दिया इस मोबाइल ने। तो हर एक के पास तो मोबाइल है, बच्चे के पास क्या, बड़े के पास क्या, तालीम याफ्ता के पास क्या, अनपढ़ के पास क्या, बुजुर्ग के पास, हर शख्स के पास मोबाइल हिस्सा बन गया। और जूं जूं वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, तू उससे रिलेटेड झगड़े तरह तरह के, हमारी उन झगड़ों पर या उन झगड़ों की नौयत पर नजर नहीं है। हमें जरा ठंडे दिलो दिमाग के साथ बैठकर सोचना चाहिए कि मोबाइल से रिलेटेड जो झगड़े हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। गली मोहल्लों में देख लो, जहां पर भी लड़ाई होती है उनमें से अक्सरियत अब आलम यह है कि उसके पीछे मोबाइल का कोई मामला, मोबाइल की खरीदो फरोख्त, सिम की खरीदो फरोख्त, किसी ने जनाब कैमरे से, मोबाइल कैमरे से किसी की तस्वीर उतार ली है बगैर बताए, उसके बाद वो ये जो वाकयात है ये झगड़ों पर मुंतज होते हैं। यार सारफ और दुकानदार के इजी लोड लेने देने पर झगड़े, दे दिया ये लोड पहुंच गया, मुझे नहीं पहुंचा, कब पहुंचा है, हर दुकान के ऊपर यही मंजर नजर आता है कुछ देर बाद। और चोरियों में सबसे ज्यादा मोबाइल चोरी होते हैं, और फिर किसी का अगर मोबाइल गुम हो जाए तो उसके बाद वो कई लोगों पे, कई दोस्तों पर, या जिस जगह से मोबाइल चोरी हुआ है उस जगह पर मौजूद तमाम लोगों पर शक किया जाता है। यार है कहीं को बंदा रख के भी भूल जाता है तो जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी तलाशियां शुरू हो जाती हैं, रिमाइंड करते हैं कि भाई पता तुझे नहीं है कि कहाँ रखा है तो हमें किस लिए पूछ रहे हो। बिल्कुल। ये अमूमन पाया जाता है खास तौर पे अदारों के अंदर और जहाँ पे ज्यादा लोग कामकाज कर रहे हो वहां। भाईजान पिछले सिर्फ एक साल के दौरान मुल्क भर में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल छीने गए या गुम हुए। 7 करोड़ के जनाब, हाय हाय, इसमें 750 का एक मेरा भी शामिल है। 750 का मोबाइल था वाकई? मैंने खरीदा तो मैंने 2200 रुपए का था। अच्छा। अब ऊपर से बटन उसके चाड़ चुड़ गए हुए थे, 2-3 जगह पे तो मैंने कमीज के बटन लगा लिए हुए थे। आवाज आती थी उसमें? अब आई आती थी और उसमें से करिया आता था, बकायदा आवाज आती थी और मेरी आवाज जाती भी थी। अच्छा, बेल भी बजती थी उसकी? नहीं, बेल नहीं थी बजती, को फोन करता था तो वो कहता था हाय मैं मर गया ये। हद हो गई यार, बेल ही बजनी है और क्या होना है। SMS मिस करता था किसी वक्त। क्यों? बस 700 की चीज में हम सारी सहूलतें तो नहीं होती। मैंने नया खरीदना था, मैं सोच रहा था कि बेच दूं, मैंने मोल लगवाया दुकान से, उसने कहा जी 700 का ले लेता हूँ। तो मैं सोच रहा था चलो मोबाइल बेच के तो किलो गोश्त ही कर ले जाएंगे, मगर वो बेचारा बस चोर ले गया, वो गोश्त खा लेगा, अब क्या हो सकता। अच्छा सर, मोबाइल रिलेटेड झगड़ों में एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जब दोस्त आपस में बैठे होते हैं तो कोई भी किसी का भी मोबाइल उठा लेता है, उसमें गैलरी में चला जाएगा जहां तस्वीरें पड़ी हुई होती हैं, या मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हम पहले बदतहजीबियों में भी कर चुके हैं, ये होता है अक्सर। और वाकई मोबाइल की वजह से बहुत ज्यादा झगड़े फैल गए हुए हैं, वाकई तुम ठीक कह रहे हो। बड़ी परेशानी बड़ी हुई। फिर ये जो एब्नॉक्शियस कॉल्स होती हैं जो घरों में खवातीन को खास तौर पे ये की जाती हैं, मतलब लफंगे किस्म के जो लोग हैं बैठे हुए हैं जिनको दुनिया में और कोई काम ही नहीं है, वो पता नहीं ज़हनी मरीज होते हैं, काम बहुत होते हैं, उनकी को माँ बहन नहीं है। मतलब बाकायदा ज़हनी मरीज लगते हैं कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आगे से आ रहा होता, लेकिन वो दूसरे पूरे घर की यानी वो जिंदगी जो है जहन्नुम बना के रख देते हैं, ऑड आवर्स में रिंग करते हैं, आगे से बोलेंगे नहीं, और ये अक्सर मामला जो हैं वो थाने कचहरी तक पहुंचते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और घरों में यार आप बाहर के मामला तो छोड़ो ना, घरों के अंदर
औलादे मैंने कई देखी हैं ऐसी, बाप बेटा सिर्फ इसलिए कई दिनों से नहीं बोल रहे जी कि अब्बा जी ने मोबाइल नहीं लेके दिया। हाँ, मोबाइल लेके नहीं दिया भाई और नहीं उसके पास बेचारे के बिल्कुल। इतनी तौफीक अगर तो छोड़ दो जान, और क्योंकि दूस- वो बाहर देखा था मोहल्ले में या स्कूल में, वो अब्बे को कहता है मुझे मोबाइल लेके दो, और बंदा पूछे यार तुम एजी ऑफिस लगे हुए जाने दो। और मोबाइल से रिलेटेड एक और झगड़ा ये होता है घर के अंदर कि कोई बड़ा छोटे से बात कर रहा है या इवन मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे हैं तो दूसरा शख्स जो है वो मोबाइल देखने में मुनहमिक होता है और जो बात कर रहा है वो इसको अपनी तौहीन समझता है और समझनी भी चाहिए, समझने यार भी कई चाहिए। तो इसका बीवियों नतीजा भी की लड़ाई की सूरत में निकलता हाँ है। जी, हाँ जी। कई बेगमात की लड़ाई, बिचारों की खवातीन की लड़ाई खान से ये पड़ी होती है कि घर बढ़ते हो तुम तो मोबाइल पे शुरू हो जाते हो, उठते हो तो बाहर चले जाते हो। फिर मैंने सॉरी कर ली, मैंने कहा मैं तो ऐसे ही देख रहा था, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। अजीजी साहब आप बहुत मासूम हैं। हैं? अजीजी साहब बहुत मासूम हैं। क्या है? नहीं उसको नहीं यकीन है ना, वो ये पार्टी वाले थाने में मेरी फोटो देखा है, उधर से मुझे फोन करके इसने बताया था यार तुम्हारी फोटो तो सबसे ऊपर लगी हुई है, फर्स्ट आए हो तुम। और सुनो तो सही तुम्हारे बारे में कह रही है बेचारी मासूम। तो अगर उसने कह दिया तो बर्दाश्त कर लो यार, तुम्हें भी तो लोग मासूम समझते हैं ना। ओ मैं तो हूँ। तुम हो। हाँ जी। मां से मुंह कैसा बनाया हुआ है? हाय हाय हाय, चार मासूम इस जैसे और मिल जाए ना, बस फिर अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, महल्ले में वक्त डाल दे। तौबा। हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नजर लगा रहा हूं। पकड़ाओ इधर ईदी शीदी बच्चों को। ईदी कौन सी? आने वाली है ईद, और क्या ईद कौन सी? अजन ईदी नहीं है, आपका पसंदीदा सेगमेंट है आज हमारे पास, कौन सा? हस्बे माजी। यानी नकद कैश। नकद। आपने खुद ही कहा था ना जी कैश। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी यार, मुझे तुम पे बेतबारी नहीं, तुम दे ही देते हो हर दफा। होता यूं है कि मेरे जो दोस्त है ना सारे महल्ले वाले, वो बैठ के मुझे ताने दे रहे होते हैं। कोई कहता है देते दूते कोई नहीं से पैसे हैं, वही उधर अनाउंस कर देते हैं। एक तो ऐसा शोखा बीच में से कहता है इसको प्रोग्राम क्यों नहीं देते, इसको तस्वीरों में क्या देने। मैंने कहा यार को अक्ल करो। अच्छा वाकई नहीं, सीरियसली बाज लोग ये भी समझते हैं कि अक्सर मेल और मैसेजेस भी करते हैं कि हमको ड्रामा करते हैं और अजीजी को पहले से पता होता है। तो वो मैं क्लियर कर दूं कि बिल्कुल नहीं पता होता, क्योंकि इसका तो चाम ही ये है। पता होता हो तो फिर हर दफा मैं बोझ न लूं। और तो ये बदतरीन आदमी है। और ये जो इनामी रकम है ये भी असली होती है, बिल्कुल असली है। देखो दिखाओ लोगों को। कायद आजम की तस्वीर। लाओ मैं दिखाता हूँ। नहीं तुम ना दिखाना, वैसे देख लो तुम। दिखाओ तो। नहीं तुम देख लो, असली है ना। वाह वाह। ठीक है, तो आज की 2 तस्वीरें और 20,000 रुपए अच्छा, मैनेजमेंट कायदे आज़म साहब की तस्वीर अगर किसी सरकारी दफ्तर में लगी हो ना तो हम पाकिस्तानियों को इतनी क्यूट नहीं लगती जितनी नोट पे लगती। ये तुमने कभी नोट किया? इसलिए कि कायदे आजम के फरमुदात याद नहीं है ना हमें। अच्छा जनाब, ये 20,000 रुपए नकद इनाम है आपके लिए। सिक्का है राजुल वक्त। वो सिक्का कौन सा है? नोट है 5 यार। नोट ही सिक्का क्या क्या मेरा दिल ना छोटा करो। नोट राजुल वक्त भाईजान, बड़ी मेहरबानी जनाब। 2 शख्सियात की तस्वीरें पूछनी है, 20,000 रुपए ईद की ईद और एक की 20,000 होनी चाहिए। नहीं दोनों यार शख्सियतें इतनी बड़ी होती हैं तो तुम चूंगे में 10,000 एक शख्सियत का 10,000 आसान बहुत है। दोनों शख्सियात बहुत आसान। हर दफा यही नहीं साहब नजर आ जाएगा साहब, तुमसे पहले हमारे व्यूअर्स मैसेज करके बता देते हैं। यकीन करो यार खुदा के लिए जाने दो, छोटे छोटे बच्चे दिखाते हो जो बूझने वाला होता है, मैं बूझ भी लेता हूँ। चलें अच्छा, जनाब, देखते हैं ना। ये ले पहली शख्सियत, ये ले। ज़ाहिर है ये तो बचपन की तस्वीर है, इससे तो कुछ तुम्हें अब इससे बंदा क्या सोचे मुझे बताओ यार। आप वैसे कुछ सोचो तो सही ना थोड़ा सा। यार खुदा के वास्ते जाने दो। अब ये बच्चा जो है ब्रिटिश लग रहा है, अंग्रेज लग रहा है, बिल्कुल इसमें सही। ये पाकिस्तानी बच्चा है। अच्छा शुरू में हिंट दे देता हूँ, अंग्रेजों के शदीद खिलाफ है ये बच्चा। लो अब मैं सोच रहा हूँ कि अंग्रेज बच्चा है, वो कह रहा है अंग्रेजों के सख्त खिलाफ है, टीपू सुल्तान भी नहीं लग रहा शक्ल से। ये है पाकिस्तानी बच्चा जी, पाकिस्तानी बच्चा सियासतदान है जी।
नहीं, ऐसा सियासतदान नहीं है, लेकिन 50 सवाल सियासत बताने हैं तुमने मैं 150 पूछ लो, 150 पूछ लो। ऐसा सियासतदान नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में बहुत अमल दखल है। सियासतदान नहीं है हिंट भी जितने मर्जी ले लो। वो तो जवाब ही तुम वो वाले दे रहे हो जो मेरी अकल समझ में नहीं आ रही। कंफ्यूज करने वाले हैं। अच्छा, एक और तस्वीर देखो, एक और तस्वीर देखो ना, फिर बताना। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। बेटे आंखें खोलो, 20,000 रुपए का सवाल है। अच्छा चलो, अच्छा 1 मिनट रुको, एक और तस्वीर देखो, यहाँ से अंदाजा हो रहा है। अजीजी साहब, ये तो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। नवाब आप फतेह जंग की फोटो ही ले आया कहीं से। टीपू सुल्तान वाली, टीपू सुल्तान वाली। और टीपू सुल्तान ने अड़क तो नहीं थे लगवाई हुई। अच्छा चलो 1 मिनट, इसके बाद आखिरी तस्वीर है, उसी पे तुमने बताना है, उसी पे मुझसे जितने हिंट लेने हैं ले लो। चलो ठीक है, चले जी। ये साफ पता चल रहा है, जरा गौर करना पड़ेगा। पुरानी तस्वीर है, बचपन की है, लेकिन साफ तौर पर झलक देखी जा सकती है। अच्छा, टीवी पर ये आप टॉक शोज में इन साहब को बहुत ज्यादा देखते हो। अच्छा, मैं ये मैं पूछ रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहा। शाह महमूद कुरैशी साहब तो नहीं है? अजीजी साहब, शाह महमूद साहब तो सियासतदान है। हाँ, वो तो डायरेक्ट सियासतदान है। ये कह रहा है कि सियासतदान नहीं, मगर सियासत से ताल्लुक है। या अल्लाह खैर करे। सोचें सियासत पर तबसरा बहुत ज्यादा फरमाते हैं। सहाफी हैं? नहीं, सहाफी भी नहीं है। सहाफी भी नहीं है? चलें। तो सियासत पे तबसरा फिर क्यों फरमाते हैं? चलो एक बहुत बड़ा हिंट दे देता हूँ, एक बहुत बड़ा हिंट दे देता हूँ कि एनालिस्ट है, और बहुत हद तक मतनाज़िया एनालिस्ट हैं। जो इनके चाहने वाले हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, इनके नज़रियात से इत्तफाक करते हैं। जो इनके मुखालिफिन हैं वो न सिर्फ इनसे डिसएग्री करते हैं, बल्कि इनका मजाक भी उड़ाते हैं। यार सिद्धा बताओ, ज़ैद अहमद साहब है। ये तो सिद्धी कोई शख्सियत है, जो मानते हैं वो बहुत ही मानते हैं, जो मुखालफत करते हैं वो बहुत मुखालफत। ये ले जनाब, ये ले। बिस्मिल्लाह कर, मेरा ख्याल है बस करते हैं। अगला इससे भी आसान है, यकीन करो। अब बहुत आसान है, बहुत आसान। 20,000 नहीं, ये ना कह दे कि वो ना बूझा तो ये भी नहीं, ये आपको दे दी है। नायरीन, अच्छा जनाब, जो मुझे तो ईद मुबारक। अच्छा जनाब, जो अगली शख्सियत है, उनकी बचपन की कोई मेरे पास तस्वीर अवेलेबल नहीं थी, जवानी की तस्वीर है। उससे तो आराम से मुझे। हाँ, और बल्कि जवानी की भी क्या, कुछ अरसा पहले की तस्वीर। अच्छा, देखिए देखें, चलें। ये लो जी, ये देखो, ये है जी अजीजी साहब, ये जो दायरा लगा हुआ जी, दायरा लगा हुआ है। वैसे ये जो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं। हाँ, ये जरा क्लोज करो, जरा क्लोज अप दिखा दो। चले बताए ना हजूर वाला। अब ओहो, और यार अब मतलब अगर ये भी नहीं तो पूछ सकते। ठहर जाओ यार, ताजा तस्वीर लग रही है बिल्कुल। हाँ ठीक है, मगर अब देखो ना, दाढ़ी भी है इस बंदे की, बाल जो हैं वो मॉडर्न है, वो मौलवी वाले नहीं है, चश्मा भी नजर वाली ऐनक भी लगाई हुई है। इस तरह के बंदे का ज़की हेल्थ सेंटर होता है। अच्छा, इस सियासी शख्सियत को भी तुम बहुत ज्यादा टॉक शोज में देखते आए हो, और कुछ अर्सा पहले तो बहुत ही ज्यादा देखते आए हो। बहुत तदब्बुर के साथ, तहम्मुल के साथ, बहुत खूबसूरत लहजे में, सुलझे हुए लहजे में बात करने वाली शख्सियत है ये। कुछ अर्सा पहले तक बहुत ही ज्यादा थे, अब भी हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत ही ज्यादा थे। अजीजी साहब, लगता है कुछ अर्से पहले की जो बात करें, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले तक बहुत ज्यादा टीवी पे आते एग्जैक्टली। तम्मल मिजाज तो ये रजा रबानी साहब को कहा करता है, लेकिन मगर इतने वीक तो नहीं है वो, उनका चेहरा भी और है। अच्छा चलो एक और तस्वीर दिखाऊं, उसमें तो बहुत वाज़ेह तौर पे नजर है तुम्हें। सीधा सीधा यार 10,000 रुपए पकड़ाने वाली बात है। अगली तस्वीर ऐसे ही पकड़ा दो, तुम पकड़ा दो ऐसे ही, उतनी देर में को गाना दिखा दो। दूसरी तस्वीर देखो, ये दिखाओ, ये रहा। अब फौरन तुम्हारे मुंह से निकलेगा, ये देखो एनसर्कल हुआ हुआ। अजीज साहब, अब जरा गौर करो। यार अभी भी नहीं यार। लो जी, ये जो बंदे साथ खड़े हैं ना, सारे चप्पलें पहनी हुई, ये लाजमन भाई कमर जमान कायरा लग रहा है। वाकई वही है, ईमान से। अजीजा वेल्डन, क्या हुआ? ये पहले वो मुझे पकड़ा के फिर बात कर। कुछ पहले तक की तस्वीर है, लेकिन पहचानने नहीं जा रहे बिल्कुल। नहीं पहचाने यार, ये मुझे पकड़ा दो, मेरा दिल काटता है। एक एक करके दूंगा। नहीं यार, एक एक करके मैं नादिया ली हूँ। वाह जी वाह। नायरीन,
ये की जिंदगी की सबसे महंगी ईद। वाह जी वाह, जरा कट्ठे वेल डन अजीज साहब, ऐसे सीरियसली क्या बात है। वेल डन। एक मिनट जरा मैं कट्ठे गिन लूं एक दफा। ध्यान से, बहुत ज्यादा है ये। 1 2 ओ यार मेरा ख्याल है कैमरे के सामने नहीं गिनते। जाना भी इधर से ही होता है जी। अजी नमैया लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। असल में मुझे कायरा साहब के मत्थे से लगा है कि ये कायरा साहब ही है और कोई नहीं है। ऊपर से बोलते वाकई खूबसूरत। नो डाउट। नाज़रीन, ईद के मौके पर चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स हमारी सकाफत का हिस्सा हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चूड़ियों के स्टॉल के मालिक मुराद भाई। नहीं सिर्फ चूड़ियां नहीं है भाई, मेरे स्टॉल पे मेहंदी भी है। कौन मेहंदी? अच्छा। और कौन कौन सी मेहंदी है अगर आपको पूछे तो मैं बता देता हूँ। और उसके साथ ईद कार्ड भी रखे हुए हैं कबूतर वाले। अच्छा। हाँ जी कबूतर वाले, हाँ कबूतर वाले भी हैं, दूसरे वो दिल और तीर वाले भी हैं। ईद कार्डों वाला जमाना तो गुजर गया मुराद भाई। हाँ वैसे अब बिकते नहीं है, कुछ ना कुछ फिर भी बिकी जाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ 5 कार्ड बिके हैं कबूतर वाले। अच्छा। हाँ हाँ 4 दिल वाले भी बिके हैं और 2 विद्या बालन वाले भी बिके। अच्छा, 4 दिल वाले भी बिके हैं। हाँ हाँ दिल अच्छा, वाले। कहा यह जाता है कि दिल वाले बिकते नहीं है। नहीं मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब दिल वाले कहाँ रह गए हम भाई, अब अच्छा, तो तो मुराद भाई हो गए हैं। पहले कभी हम भी वहीद मुराद बन के फिरते थे, अब तो खवातीन जो बहनें आती हैं वो मुराद भाई कह के उन्होंने मुराद भाई रख दिया। बस मुराद भाई कब और कैसे ये ख्याल आया स्टॉल लगाने का? अच्छी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। ओए होए। ये 2 साल पहले बंद हुई है जुनैद भाई, क्या बताएं आपको। बस अच्छा भला हमारा भी मिनरल वाटर चल पड़ा था। अच्छा। और अल्लाह के फजल से बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ भर रहा था बोतलें। 5-6 नलके लगवाए हुए थे, हर नलके के ऊपर हर हफ्ते के बाद मलमल चेंज करता था। जैसे खवातीन ने घरों में मलमल बांधी होती है अच्छा। पानी साफ रखने के लिए। बस छापा पड़ गया, ओए होए। बंद हो गया वो काम। अच्छा, फिर आपको इस स्टॉल का ख्याल आया? नहीं फिर फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री ऑनर जो थे अच्छा। तो बस जी तो चाहे कि दौड़ जाएं, ये काम ही छोड़ दें, मगर लगानी पड़ी, बच्चे तो पालने हैं ना भाई। तो वो सिल्वर गलाने के लिए भट्टी लगाई, सिल्ली बना के बेचते थे। अच्छा। किस्मत बस बुरी, अकेले के इर्द गिर्द कोई दुश्मन था, उसने दोबारा शिकायत कर दी। क्या? कसूर हमारा नहीं था, मीटर के पीछे से तार लगाई हुई थी, वो मीटर रीडर ने लगाई हुई थी, हमने नहीं लगाई। चोरी की बिजली पे काम करते थे? ये मालूम होता तो कैसे काम करते भाई। वो तो मीटर रीडर लगा गया कि हम तो उसे नकद 3000 रुपया देते थे। वो फैक्ट्री भी बंद करना पड़ गई, मगर भट्टी लगी हुई थी। फिर मूंगफली भूनने का काम शुरू किया उसी भट्टी पे। उसी भट्टी पे क्या करते भाई, अच्छा। गैस और बिजली का कनेक्शन तो कट गया। ओए होए। बताया नहीं तेजी में, गैस भी चोरी ही कर रहे थे। तो वो बस फिर दोनों कनेक्शन काट दिए उन्होंने। फिर मैं तो बस सिलेंडर रख के तो मूंगफली बुनने का काम शुरू किया। तो अब उसी फैक्ट्री में चूड़ियां बनाते हैं जो बेचने? नहीं ये तो सर्दियों में काम करते रहे, अब तो मूंगफली भी नहीं बिक रही। अभी सोचा अब 2 ही ऑप्शन थे सामने, या शटाला लगा लूं या शटाल लगा लूं। अच्छा। हाँ तो सोचा शटाला लगाएंगे बड़ी ईद पे। अच्छा। अभी चूड़ियों का शटाल लगा लेते हैं। अच्छा। तो वो लगा लिया हुआ भाई। अब तक वैसे कैसा रिस्पॉन्स है? बिक्री कितनी हुई है? बिक्री तो काफी हो रही है, बस चूड़ियों की और मेहंदी की काफी बिक्री है। अच्छा। ईद कार्ड तो अब ना होने के बराबर ही रह गए हुए। अच्छा। अब नहीं बिकते, अब तो SMS ही चल रहा होता है। वही बिके वो 2 विद्या बालन के और वो 4 जो। हाँ याद आया वो वीना मलक के भी थे। अच्छा। वो बस इलाके के SHO ने नुक्से अमन में जब्त कर ली है। हाँ। पहले तो खड़े होकर तस्वीर देखता रहा, फिर एकदम बोला भाई दिल में कुछ नुक्स पैदा हो रहा है, इस पे नुक्से अमन की दफा लगती है। बल्कि कुछ देर बाद तो कहने लगा कि ये तो 2 दफा लगती है। मैंने कहा भाई देख लो, ये ना हो कि घर ले जाओ तो भाभी फिर नुक्से अमल लगा दे। तो फिर जब्त कर लिया उसने? ले गया भाई, बहुत फोन करवाए, मैंने खुद भी फोन पे कहा, मैंने कहा खुदा के लिए कुछ ले दे के यार जान छोड़ दे। इतने सारे कार्ड 6 दर्जन थे। मैंने कहा ये इतना ही तो भाई हमने मुनाफा कमाना था, तुम ही ले आए हो। अच्छा मुराद भाई, बात हो रही थी स्टॉल की, तो सीधा आप फैक्ट्री से
चूड़ियों के स्टॉल भी आए। बस क्या बताएं जुनैद साहब, सिर्फ 2 छापों ने कंगला कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये जब दूसरा छापा पड़ा तो वो छापा ऐसा जहन में बैठा कि मेहंदी वाला स्टॉल लगा लिया, उधर ही अब छापे लगा रहा हूँ। अच्छा, तो आपके वहाँ पे सिर्फ छापे वाली मेहंदी लगती है? वो कौन मेहंदी लगाते हैं? भाई कौन मेहंदी लगाने के लिए ना हमारे पास टाइम है, ना लगवाने के लिए हमारी बहनों के पास टाइम है। अच्छा, जल्दी जल्दी बस छापे वाला काम ही चल रहा है। अब तो वैसे भी आपको पता है हर जगह ही छापे वाला काम चल रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे ये बताएं कि इस ईद पे आपका बिजनेस कुछ सही चल रहा है? हाँ भाई, हर ईद पे ऐसे ही होता है। खवातीन ने तो ये नहीं ना बाज आना होता, उन्होंने तो चूड़ियां भी चढ़ानी है, मेहंदी भी लगानी है। अल्लाह के फजल से काम तो अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। मगर बेइज्जती भी इसमें बहुत चलती है। क्यों? बस हमारी माएं बहनें बात नहीं सुनती, बर्दाश्त नहीं करती। अभी कल परसों की बात है, एक खातून आई है हमारी बहन, काफी ज्यादा खाना पीना होगा उनका, मैं तो डरते हुए अब भी नहीं कहता कि बहुत मोटी थी। मैंने बस इतना ही कहा है, मैंने कहा आपके साइज की चूड़ी होगी नहीं, आपका हाथ काफी भारी है। अच्छा। आगे से कहने लगी अभी मुंह पे पड़ा नहीं, तुम्हें पहले ही पता चल गया भारी है। यकीन करो जुनैद मियां, चूड़ियां तो उन्होंने नहीं मुझसे फिर चढ़वाई, मगर को 1.25 घंटा वहां खड़े होकर बेइज्जत करके गई। मुंह में डाइट कर करके मरने वाली हो गई हूँ, तुझे मोटा दिखाई दे रहा है। हालांकि बाखुदा पहले तो जब उन्होंने सिर्फ हाथ आगे किया तो मैंने पीछे नहीं देखा कि खातून कौन सी, तो हाथ देखकर मुझे ऐसे लगा कि ये कौन सी खातून है जो टांग पे चूड़ियां चढ़ाना चाहती। टांग जैसा हाथ था। टांग पे? हाँ, वो हाथ तो इतना भारी हो नहीं सकता था ना। अभी मुझे उनके मुंदरी भी नजर आई हाथ में, फिर मैंने सोचा कि कई खवातीन पाँव की उंगली में भी मुंदरी पहन लेती है, मगर जब हल्का सा पीछे गया हूँ ये कोहनी नजर आई है तो मैंने दिल में ही माफी मांग ली। शुक्र है कह नहीं पाया मैं अभी कि भाई ये टांग है या बाजू है, तो इसलिए बेइज्जती होती है। खवातीन की मर्जी की बात ना हो तो वो बेइज्जत करना शुरू कर तो फिर आप जानबूझ के खवातीन की मर्जी की बात करते होंगे ना? करते हैं भाई, क्या करें, अब कारोबार भी तो करना है। खुशामद सुनने की आदत होती है ना खवातीन को। अब तो कोई मेरी इतनी मोटी बहन भी आ जाए ना तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कुछ खाया पिया करें, कमजोर लग रही हैं आजकल। अच्छा। इतनी डाइट भी नहीं अच्छी होती, इसी में खुश हो के तो 2-3 दर्जन खरीद लेती है। अच्छा, बस खवातीन की मर्जी होती है, किस बात पे उन्होंने खुश होना है किस पे नहीं है उन्हीं की मर्जी है। इसी तरह एक बहन हमारी आई, बहुत मोटी थी, खुश करने के लिए, माल बेचने के लिए मैंने उनसे कह दिया कि बहन मेरी पिछले साल तो माशाल्लाह सेहत काफी थी, इतनी कमजोर हो गई है। आगे से कहने लगी मैं मोटी जरूर हूं, पागल नहीं हूं। अबे कमबख्त, पिछले साल ही तो मुझे तलाक हुई है। और इसी बात पे उस कमबख्त ने तलाक दी है कि मोहल्ले के लोग उस मुए को आवाजें लगानी शुरू हो गए थे, और मोटी दे बंदे। इस तरह करके दिखाया था? नहीं जुनैद भाई, उन्होंने तो तहतुल लफ्ज में बताया था, मगर हम तो जानते हैं ना ये कमबख्त मोहल्ले के लड़के किस तरह आवाज लगाते। ये था आज का अस्बयान। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।